आदाब नाजरीन, अलमीन कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वो नाम है जो सारे रियासत में नहीं बल्कि मुल्क और बरसगीर में तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। कल शहर मैसूर से चुनिंदा अफराद का एक वफ्द गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा, जहां पर उन्होंने अलमीन के चेयरमैन और गौसिया कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर उमर इस्माइल खान से मुलाकात की और साथ साथ गौसिया कॉलेज के चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज से भी मुलाकात की और दोनों को ज़बरदस्त तहनीत भी पेश करते हुए मैसूर आने की दावत भी दी। इससे कबल स्टेज पर मौजूद मैसूर ही नहीं बल्कि मंडिया और टुमकुर से आए हुए तमाम चुनिंदा दानिशवरान से खिताब करते हुए अलमीन के चेयरमैन और गौसिया कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर इस्माइल खान साहब ने बताया कि हाजी नबी शरीफ और डॉक्टर साहब, जिनकी तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनके ताल्लुक से कहा कि ये दोनों एक आंख की तरह थे और उससे ज़्यादा भाई भाई की तरह थे। नबी शरीफ तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इस वक्त रिटायर्ड IAS और IPS अफसरों के साथ रोज़ाना इनका उठना बैठना था। डॉक्टर साहब हाजी नबी शरीफ दोनों ने मिलकर तन मन धन कौम की तालीम के लिए कुर्बान कर दिया। डॉक्टर साहब ने अपने खुसर का बंगला बेचकर इदारे को मजबूत किया और जब अलमीन को लाइब्रेरी की ज़रूरत थी तो अपनी दोनों दुकानें फ़रोख्त कर दी। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जब भी अच्छे काम करें तो अल्लाह आपका साथ देगा। इसी तरह गौसिया कॉलेज के चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज साहब ने कहा कि हाजी नबी शरीफ साहब की बदौलत आज हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। अलमीन एक ऐसा इदारा है जिसको पूरे मुल्क में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इस इदारे का नाम न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी मौजूद है। हमारे इदारे के तालिब इल्म सारी दुनिया में फैले हुए हैं। डॉक्टर साहब और हाजी नबी साहब की कोशिश की बदौलत आज हम इस मकाम पर हैं। गोया इन दोनों को इस इजलास में ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। So under his patronage, I learned this. What I learned today under the patronage of ex-education minister Dr. Sir, I am sharing with my people. Today, it's a matter of pride for me because I am meeting such a wonderful, young, dynamic, energetic, enthusiastic leader of our education system, Mr. Umar Singh. I never really neglect one of our dear friend. In those days, I met today. It will feel tired. Only physically he's feeling tired, but psychologically his enthusiasm never died. So, apart from that, the very dynamic principal of Wahid Ansari Sahab, he is also very well performing. So I go back for 25 years because I left Ramnagar after before 25 years. Anyway, our chairman sir has given an opportunity to reunite. First of all, I introduce our learned team member, Dr. Anisa. He is the head professor of the Dental College. He never retired. He never died. He is running a Bangladesh hospital. So nowadays, he takes care of hundreds of corona patients without any hesitation. At the same time, he is the chairman of the Buddha Education Society, #1 school in Malaysia. So, next our team member, Maulana Ayub Ansari Sahab. From a background of religious, but one outside Nagar Islam, where he is running a school for poor, boarding, lodging, Arabic and English education. If he is not taking around 1,000 students, they are still runners. This is the Maulana. And third person
is Alim Saab. He's a very enthusiastic person with all humanitarian activities. Next, one of our colleague, Mr. Ismail. Not just a much during pandemic situation in the hospital, he supplied 15,000 food kit to the doors. And one more our corona warrior, Age Azam. Basically, he is an engineer. He is a corona warrior. He is taking up hundreds of corona patients without gaining his life. From hospital to different destination, he served a lot. He is with us. And one more our colleague, Professor Abdul Sattar, he retired in the same institution. He went to Mysore. And finally, not to be so whatever the proceedings, whatever the happenings in these premises, that is taken to the boundaries of Karnataka and India. Our chief, Sardar Faisal sir, a biggest media house in Mysore. For the first time, the sad demise of Dr. Mumtaz Ahmad sir, he battled and he gave all the opinions of celebrated Mysoreans to the movement daughter of the society. I welcome my these are some of the very important persons from Mysore. What Mysoreans want, instead of coming here and felicitating our chairman sir, better on behalf of the Mysoreans, we are requesting our newly appointed chairman to Mysore to felicitate. Why? Because he is a source of idea, he is a source of inspiration to younger people of our society. So, as like father, let he take care of the matter. And Dr. Sir, he has created a empire of education. So, personally, I met, I take his advices all the time. So, what he suggests, that I have put into practice. So, I must be thankful on behalf of the entire Mysore learned citizens, and I bless our newly chairman. Let he carry on the responsibilities of his shoulder. We are all united with him in carrying this education institution a asset for humanity. Founder of Oscar Industrial Education Trust was not an educated man, but I study educated तो मतलब बैठे खाई होते IAS ऑफिसर वगैरह होता तो इज्जत करते बड़ी मुश्किल से वो नीचे से आए तो स्ट्रगल करने को ऊपर से जैसा आए ना उनको ख्वाहिश है एजुकेटेड आदमी के साथ बैठे ये बहुत असर होती है अल्लाह के फजल से जो खबर का असर था आज मैं यहाँ इदारे में बैठी उनको बहुत मुश्किल से बोलने के बाद मैं स्टेज पर बैठो कैसा मुश्किल में पैसा कमाए कैसा मेहनत करे और जैसा ग्राउंड बदल जाता उतना बड़ा युद्ध है बेंगलुरु में प्राइम प्रॉपर्टी हमारी 4 एकड़ जमीन ये करे फर्स्ट आईडिया स्टार्ट करे आईएएस ऑफिसर के साथ में को ट्रस्ट करना को बड़ी मुश्किल से उर्दू में साइन करते थे उनके डॉक्यूमेंट के साइन मेरे पास है अल्लाह को पैसा एक आदमी ये ख्वाहिश की एजुकेटेड लोगों के साथ बैठना जो तकलीफ से पढ़ रहा है मेहनत से पढ़ रहा है मगर अपने वास्ते नहीं सोचे कौन के वास्ते सोचे तो आज जो है उन्होंने ही मगर उनकी निशानी बात है ये हमारे तजुर्बे का अवसर आते हैं बाहर जाने की बात नहीं तजुर्बे की बात ये हमारे ट्रस्ट आबा ट्रस्ट था आबा उसमें शामिल है एक ट्रस्टी थे उसमें ट्रस्ट के अंदर हमारे सोशल वर्कर से बात इन्फॉर्मेशन वो आप पूछते हो हाल मेरे कारोबार का क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का आई मैं देखता हूँ मैं अनुभव कैसे है बहुत पैसा आया था उनके पास तब टेस्ट में नहीं थे तब उनके साथ रिटायर्ड IAS के ऑफिसर थे वायरट को संभाला उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं खुद उनके घर पर जाकर साफ किया मैं मेरी पूरी टोटल लाइफ में डॉक्टर साहब का नाम नहीं लिया मैं लेता नहीं बाबा का नाम बाबा वो तुम सुनी आसिफ लिया तो नहीं तो खुद जाकर उसकी आईडी के लिए नासिर याद है ना लगता है जमीन तुम्हारी ये किला तुम्हारा तुम्हें चलाओ
तुम्हें किससे समझ में आता है क्रश का मोह? मेरे घर में मन में नहीं है कि दो बच्चे खाला इतनी सरल रास्ता बात नहीं है। फिर उससे पूरा यूनिफॉर्मिटी में लाए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, कुछ भी हमारा पापा बट उर्दू में से क्या नाम रखता हुआ दिखाई को बाद में तो ऐसा करते करते पॉलिटेक्निक साइड करा, ये इंजीनियरिंग करा। तो मैं बोलूँगा शायद एक दूसरे के लिए फिल्म का नाम आया था, उसी तरह से ये दो यहाँ है एक दूसरे के लिए होते हैं। डॉक्टर साहब को मेरा वालिद कहा करते थे, वो मेरा भाई, मैं उसका भाई। हमारा वालिद भी, मेरे छोटे भाई के वालिद भी, बच्चे क्या कहते हैं ना दादा ने बेटा ने दादा हमारा भी वो सोचता दादा इसके बाद क्या बच्चा क्या किया क्या करो इसे तो हम पूछता नहीं है हमारा वालिद इतना बात अच्छी होना नसीहत। उसके बाद के नसीहत में डॉक्टर साहब हमारे करोड़ों देखो तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब के अल्फाज थे। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां जुड़ता गया। अब मैं समझता हूँ वो कारवां में और इजाफा हो गया। तो इसी बात से मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अदाब नाजरीन, एक महीने पहले मैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की इंतकाल की खबर आपके रूबरू पेश किया था। यानी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो इंतकाल होने के बाद भी यहाँ से मुंतकिल होते हैं, लेकिन जहनों में हमेशा याद उनकी बाकी रहती है। ऐसे तारीख साज हस्तियों में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का भी नाम शामिल है, जिन्होंने इल्म के मैदान में जो कारहा नाम अंजाम दिए हैं, उसको लेकर लोगों के दिलों में हमेशा बाबा तलीम के नाम से जाने जाएंगे। तारीख गवाह है कि कर्नाटक में हमेशा ये सितारों की मानन चमकते रहेंगे। अभी आइए, मैं यहाँ गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच चुका हूँ। अभी अलमीन की जो बागडोर है, उनके रूही रवा, उन्हीं के फर्जन उमर इस्माइल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ मैसूर, तुमकुर और मंडिया से तशरीफ़ लाए लोगों की तहनीत भी की और अपने वालिद के अज़ाइम को लेकर चलने का अहद भी किया है। चलिए उनसे 2 मिनट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, जज़ाकल्लाहु खैर। आप एंड एनर्जेटिक पर्सन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। सर, सबसे पहले वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद जी, ये जो जिम्मेदारी है जी, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा पैगाम भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा किस नज़रिए से देखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से 2000 से मैं अलमीन मूवमेंट्स में जुड़ा हूँ। लास्ट 2 टर्म्स अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ जी, और अब्बास से बहुत क्लोज के साथ जो है उनको ऑब्जर्व करते रहा हूँ। जी सर। तो ये जो चेंज हुआ है मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। इसलिए कि पहले से मुझे ये चीज़ की तजुर्बा भी है जी, और काम जो है चल रहा था मेरा जी, और मेरा शौक़ पहले से अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी में सेक्रेटरी हूँ अच्छा, कई साल से। तो मेरा शौक़ पहले से गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देना और जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको वापस में एजुकेशन में लाना, उनको पढ़ाना, और जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, मेरिट कम पॉवर्टी बेसिस पे स्कॉलरशिप देना, ये पहले से मेरी ख्वाहिश है और इस पर कायम था। अब ये जो चेयरमैन साहब की चेयरमैनशिप की जो जिम्मेदारी आई है मुझे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के, वो इंशाल्लाह जो है इसी नज़रिए से कि मुसलमान बच्चे जो है उनको एजुकेशन में आगे लेके जाना है, पढ़ना है एज़ पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आज के जो मौजूदा हालत हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देना और उनको जो है जैसे वो पढ़ के निकलते हैं उनको जॉब रेडी बना के उनको इंस्टीट्यूशन से फारिग करना, ऐसा मेरा ख्याल है। सर, हर इज़ला में अलमीन की जानिब से स्कॉलरशिप को कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है। सर, इसमें मैसूर भी शामिल होगा, ये यकीन हमें उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ये नहीं है कि ये लिमिटेड नहीं है, ऑल ओवर कर्नाटका। कर्नाटका से बहुत से मैसूर के बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो हम स्कॉलरशिप दिए हैं और वो पढ़ के डॉक्टर्स बन चुके हैं। ऑल ओवर पूरा नॉर्थ कर्नाटका रहंदे, साउथ कर्नाटका रहंदे, एवरीवेयर एनीबडी कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ऑन देयर मेरिट कम पॉवर्टी बेसिस और ऑन देयर मार्क्स दे विल बी इंशाल्लाह उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। चेयरमैन साहब, जैसा कि टुमकुर वालों ने एक अर्जी दी थी आपको कि टुमकुर में भी एक ऐसा इदारा हो आपकी तरफ से, यानी मैसूर में भी कुछ ऐसी जरूरत की महसूस हो रही है, क्या आपका कुछ ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में मैसूर में कुछ आपकी तरफ से आपके इदारों में कुछ और इदारा शामिल होगा? तो पहली बात हमें जो है ये एग्जिस्टिंग इदारे संभालना है जी। जो अब जो कोविड 2 साल जो कोविड हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खासकर मिडिल क्लास के जहाँ जाते थे लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, वहाँ बहुत इफेक्ट हुआ है बिकॉज इनकम बहुत मार पड़ी है। तो पहले हमें ज़रा संभल जाना है, हमारे एग्जिस्टिंग इदारे संभल जाना है, उसके बाद एक्सपेंशन का ज़रूर सोचेंगे। जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी साथ मिलता है वहाँ वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा साथ मिलेगा, जो लोग हमारा हेल्प करेंगे वो इदारा ज़रूर कायम करेंगे इंशाल्लाह। जी सर,
आपके वालिद के इंतकाल के बाद जैसे ही ये कौसर न्यूज़ में ये नशर किया गया था, लोगों की ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत को लेकर सराहना की गई और हर एक की उम्मीद आप निगाहों पे आपके यानी आपको कहीं ना कहीं आपको वो पाने की उम्मीद करते हैं कि कहीं मैसूर तशरीफ़ लाएँ, तो कब आने का इरादा है? इंशाल्लाह ज़रूर आता हूँ। अब आप बुलाए हैं इंशाल्लाह। अब एक आपसे मशवरा करके आप लोग जब फ्री हैं इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में आता हूँ, आके हम सबको मिल के जाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के बिल्कुल हर इदारे के एक लोग आए हुए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रोफेसर नबी जान के साथ आपको कैसा महसूस हुआ सर? बहुत अच्छा लगा। ये आप लोगों की बुजुर्गों की टीम है, आप लोग जो है इसमें एजुकेशन के लाइन में मेहनत किए हैं, तो आपके तजुर्बा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और खासकर हज़रत जो इनके बात सुन के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। उनके जो बुजुर्ग है वो मुझे ना मेहनत से आई है, उनकी माशाल्लाह उनकी कुर्बानी से उनके मेहनत से ये बुजुर्गी आई है। उनके बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह इनसे एडवाइस लेके इनसे ताल्लुक़ रखे आगे भी इंशाल्लाह मैं काम करने का ख्याल रखूँ। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल जी, नौजवान जो इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो मसाइल हैं यानी पैसों को लेकर जो रहता है मसाइल वगैरह हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपनी सलाहियत पर वो सामने कैसे बढ़ सकते हैं? मैंने एजुकेशन कायम करना चाहिए। नहीं सर, नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं उनको मौके नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं वो उनके मसाइल रहते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, वो क्या करना चाहिए उनको? ना देखो क्या है, हमारे बस में जितना हो सकता है हमें कर रहे हैं जी। मैक्सिमम हमारा माशाल्लाह एजुकेशन कोई बिग अमाउंट है अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट में अंडर जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते, उसके हद तक हमें कर सकते हैं, जितने लोगों को दे सक रही हमें दे रही। उसके अलावा दूसरे जो बहुत से दूसरे हजरात भी हैं जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको हम गाइड करते हैं, उनको उनके तरफ जाओ ऐसा गाइड करते हैं। और देखो दूसरा आजकल गवर्नमेंट से भी बहुत मदद मिल रही है, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट से हमें सब लोग मदद लेना। और गवर्नमेंट के इदारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टाफ को अच्छा ही सैलरीज दे रहे हैं, तो उनको भी जाना हमारे ये नहीं जरूरी नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट भी जिन इंस्टीट्यूशन चला रही है वहाँ भी जाकर पढ़ना, और वहाँ भी जो है इंशाल्लाह वहाँ से भी बहुत फायदा होता है। शुक्रिया सर। अच्छा, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, गौसे इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ के चेयरमैन सिराज साहब से मैं बात करने वाला हूँ। आइए उनके तसरा जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में इतने बड़े वसी पैमाने पर गौसा इंजीनियरिंग को एक मॉडल बनाकर दिखा दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, सब हमारे बड़ों की बुजुर्गों की निशानियां हैं। हमारा काम अभी इसको और आगे बढ़ाना है बस। बिल्कुल। और भी और क्या है, हमारा काज इज एजुकेशन, ऑफ कोर्स सर, क्वालिटी एजुकेशन, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, फॉर बोथ बॉयज एंड फॉर बोथ गर्ल्स। सर, आपने सेमिनार हॉल में कहा कि आपके वालिद और डॉक्टर मुमताज अहमद खान भाई के मानिंद थे। कुछ बात बताइए उन दोनों की। हाँ, वो एक दूसरे के लिए बने थे जी। हाँ जी, इस तरह रहते थे। फिल्म देखा है आपने? हाँ हाँ सर, देखा है। इस तरह से उनकी 60 साल की लाइफ गुजरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 60 साल की दोस्ती। यानी दोनों की यही फिक्र थी कि कौम को तालीम दी जाए। हमारे वालिद के पास पैसा था जी, डॉक्टर साहब पैसे से हार के थक गए थे। अच्छा, उनके गोद में लेके जाके हमारे वालिद ने चाबी और जमीन और जायदाद। यानी जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जिस जमीन पे हम आलीशान इमारत देख रहे हैं, नहीं, बेंगलोर में बेंगलोर की बात इससे 10 गुना जास्ती पैसा मिलेगा आपको बेंगलोर की। आज की बेंगलोर की हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आई थिंक इट इज 2000 करोड़। तो आपके वालिद ने पैसों को नहीं देखा बल्कि कौम की तालीम की फिक्र की। बताया था ना, हमारे वालिद हेबत थे, उनको एक गुस्सा आ गया था। जी सर। एक उनके दोस्त के बच्चे को जी क्राइस्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए गए थे जी, तो उन्होंने बोले थे तुम्हारा मुस्लिम्स को बोलो कॉलेज बनाओ, अच्छा, उसमें जाओ। जी जी जी, एक तरह से हमारा पास नहीं, तो बोले तेरे बगल में ही कॉलेज बनाता हूँ बोल के बनाया। यानी करके दिखा दिया। करके दिखा। आपके नाम, आपके वालिद का नाम बता दीजिए। अलहाज नबी शरीफ साहब मरहूम, जिनके नाम से बिल्डिंग खड़ी हुई है। जी 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 जी। सर, नौजवानों को आखिर में आपसे एक सवाल है, नौजवान जो इल्म हासिल करना चाह रहे हैं जी, उनको एक मैसेज दीजिए सर। ये उनको मैसेज यही है कि जिनकी हैसियत है वो पढ़ लेंगे, किधर भी पढ़ लेंगे। जी सर। जो कमजोर है, जी सर, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स भी अच्छे हो, जी सर, इनके पास पैसा नहीं है, जी सर, तो मैं और उमर साहब उनके लिए जी जरूर खड़े हैं, हमेशा हाजिर हैं। हमेशा हाजिर है। जी, आपने कहा कि अभी जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो उनसे आपसे मिलें, तो किस तरह, क्या प्लेटफॉर्म है उनको? उनको प्लेटफॉर्म यही है, बेंगलोर आना पड़ेगा उनको। जी सर। वहाँ पे अल-अमीन स्कॉलरशिप कमेटी अलग ही है। जी सर। जहाँ पूरा बच्चों की जांच लेंगे हम, जी, उनके पेरेंट्स की जांच लेंगे हम। जी, ये पूरा काम उमर साहब संभालते हैं माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह उन्होंने उमर के साहब के पास पहुँच गए तो उनका बेड़ा पार। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों के लिए एक पैगाम है जो अपने अंदर सलाहियत रखने के बावजूद कहीं ना कहीं अपने मसाइल में
आगे पढ़ने को लेकर जो मुश्किलात हैं उनको एक मैसेज है। अभी सिराज साहब ने जो कहा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को एक ज़रिया बना देता है जो एक कास को लेकर चल रहे हैं। कौसर न्यूज़ से यही अपील है कि जो भी बच्चे अपने सुनहरा मुस्तकबिल बनाने वाले हैं वो आगे बढ़े और अपने मुसम्मम इरादों में कामयाब ज़रूर